Good morning, students. In today's class, we are going to learn about these topics in detail. We already studying our chapter number 5, which is related with children and women in sports. Okay. In that chapter, first we are concentrating on the children and the developmental stages how we found in children about which kind of body changes, body movements they are able to perform from birth till late childhood. इसके बारे में हम इस डिटेल में जानेंगे, ठीक है. बट उससे पहले भी हमको अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट इज बेसिकली रिलेटेड विद द बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लाइक रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग और स्टेयर्स से नीचे उतरना. दिस एवरीथिंग एंड एक्सेट्रा kind of motion what we create from our body structure, that is called motor ability, ठीक है. Now when we talk about development, how many skills you have learned in your whole life, how many skills you have learned in your whole life, that is called motor development, ठीक है. और ये सारी की सारी स्किल्स हम कैसे सीखते हैं उसका एक पर्टिकुलर चार्ट बना हुआ है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट infanthood, which is starts from birth to 2 years, ठीक है. नेक्स्ट early childhood. In this we are going to talk about those children who are at the age of 2 to 6 years. उसके बाद आता है मिडिल चाइल्ड, ठीक है, जिसका एज क्या होगा, एज टू क्या है 7 to 10 ईयर्स ऑफ, ठीक है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लेट चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड में क्या होता है 9 to 12 ईयर्स. इस जैसे 2 साल का समय है. बिकॉज आफ्टर दिस डेवलपमेंटल स्टेजेस पर्टिकुलर चाइल्ड इज एंटरिंग इनटू द टीन एज, ठीक है. टीन एज इज नॉट कंसिडर्ड एज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है. बिकॉज व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू द टीन एज, एट दैट मोमेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड our body abilities and what we can do and what more we can do from our body, ठीक है. but this is the stages where we are in a learning phase. These are the stages where we are in learning stage. learning stage किसी पर्टिकुलर मोटर स्किल को सीखने की जो लर्निंग स्किल है, जो स्टेज है, उसके हम इसके अंदर पढ़ेंगे. so now first we are going to talk about in detail related to infanthood. See, during this stage there is an extremely rapid growth and development of muscles. The motor skills achieved during infancy may vary, ठीक है. At this stage, जब भी हमने देखा है जो छोटा सा बच्चा होता है पैदा होने के तुरंत बाद ही, just after having a birth, in just 12 months और 11 months, उसकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके स्ट्रक्चर के साइज और लेंथ में बहुत अंदर आने लगता है, ठीक है. In that condition, that particular child is taking control on their gross muscles. Gross muscles क्या होते हैं? Whatever the large muscle group of our body, ठीक है. This called, those muscles is called gross motor development. First of all, if we talk about, सबसे पहले बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक जगह बैठा रहता है, कुछ भी चीज चाहिए तो मम्मी पापा को देख करके रोता है. देन वी आर गोइंग टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज नीड समथिंग, ठीक है. बट आफ्टर 1 month और आफ्टर 2-3 months, ठीक है, व्हेन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड स्टार्ट्स क्रॉलिंग में क्या है, एक तो मसल्स, हाथों की मसल्स में जाना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू जस्ट कीप आवर पाम front side, then move forward like this, and then also we require some little bit amount of energy from our lower body also, ठीक है. जैसे कि आपके जो पैरों की मसल्स हो गई, क्वाड्रिसेप्स हो गई, हैमस्ट्रिंग हो गई है, इसको कैसे कंट्रोल करना है. सो दीज आर द पर्टिकुलरली ग्रॉस मोटर एबिलिटीज, ठीक है. तो इस तरह से हम चलना फिरना शुरू करते हैं आगे. बट व्हेन वी गो टू टॉक अबाउट सम अदर motor abilities like fine motor abilities, just after some months, ठीक है, when we have a proper control on our gross motor ability, or we can say gross muscles of our body, ठीक है. After that we are just going to talk about to holding a thing, ठीक है. जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था, when we try to give one key to any particular person उसको 2 उंगली से पकड़ेगा, because we know that for holding that key 2 fingers is enough. But when we give that particular same key to one child, ठीक है, that child is not knowing about how to hold that key, तो वो पूरी चाबी को ही ऐसे करके पकड़ लेता है. Only because the reason is that particular child is not having a control on his fine muscle groups. समझ में आ गया? That particular child is having control on their gross muscles of his body or his or her body. But after that, when we just talk about their fine muscle groups, धीरे धीरे उसके हाथों में उंगलियों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कब छोड़ना है, सारी चीज़ें उसमें धीरे धीरे आने शुरू होती है. जब हम बुक में जाएंगे, बुक में एक पर्टिकुलर चार्ट दिया हुआ है, ठीक है. उस चार्ट में वी सी इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है, 0 से लेकर के 23.5 months
23.5 मंथ तक का एक पूरा पर्टिकुलर चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट को देख के हम ये समझ सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट पर्टिकुलर चाइल्ड हु इज न्यूली बॉर्न, उसको क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट एंड अकॉर्डिंग टू हिज एज। ठीक है, ये चीज़ हमें जानना है इन इन्फेंटहुड विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 2 years। 23.5 मीन्स वही सीधा आपका 2 साल तक का इसमें रेंज मिलता है। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड। एंड अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम 2 years to 6 years। इसके बाद ड्यूरिंग दिस स्टेज सिस्टमैटिक ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स लाइक जिम्नास्टिक एंड स्विमिंग कैन बी बिगिन एट दिस स्टेज। Children of this age are proficient at basic movement like rolling, hanging on bars, pushing and pulling kind of activities are done at this stage. But students should not be exposed to any competition in this stage. See, when we having a control on our both the muscle groups कौन से? Gross and fine. ठीक है, but we just having a control, but we are not knowing how to use these things in a proper manner. ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ हम जानेंगे कि भाई इसके बाद हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है। वो वट एवर द थिंग्स एंड वट एवर द स्किल्स आर देयर, वी हैव टू लर्न दोज स्किल्स इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, जैसे हम बात करें अगर किसी को जिम्नास्टिक अगर सीखना है एट दैट अर्ली एज अगर हम सीख लेते हैं तो उससे हमें बहुत एडवांटेज मिलता है, बिकॉज उसके जो मूवमेंट्स होते हैं, समरसॉल्ट्स होते हैं, कार्टव्हील होती है, रोलिंग एंड पुशिंग जो भी होती है एक्टिविटी, उसके लिए आप अपनी मसल्स को तैयार कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। बट अगर हम बात करें एट दिस स्टेज, जस्ट लाइक यू ऑल, आपकी एज में अगर यू जस्ट थिंक अबाउट टू गो टू हैव वन जिम्नास्टिक ट्रेनिंग, दैट द पर्टिकुलर ट्रेनर इज ऑलरेडी डिनाइड यू बिकॉज योर स्ट्रक्चर इज टेकिंग अ प्रॉपर शेप एंड साइज। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट जिम्नास्टिक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, एंड द सेकंड वन इज स्ट्रेंथ ऑन योर फाइन मसल ग्रुप्स एंड ग्रॉस मसल्स ग्रुप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मिडिल चाइल्डहुड। But before talking about middle childhood, we have to just simplify the things that when we talk about that infanthood. In infanthood, we are just getting a control on our gross motor skills और fine motor skills। ठीक है, जिसमें कि हमारे बेसिकली बड़े मसल्स और जो छोटे फाइन मसल्स होते हैं उसका हमें समझना पड़ता है कि उसको कैसे यूज़ करना है। एंड आफ्टर हैविंग द नॉलेज ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है, व्हेन वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द वन ट्रेनिंग सेशन में एक्चुअली क्या होता है, इन दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन दैट पर्टिकुलर ट्रेनर इज गोइंग टू टीच यू हाउ टू कोऑर्डिनेट विद दिस थिंग्स, हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर मसल ग्रुप्स इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आएगा आपका मिडिल चाइल्डहुड, 7 to 10 years of age। At the age of 7 years, the child learn to develop hand-eye coordination and balancing। ठीक है, बट बैलेंसिंग और हैंड-आई कोऑर्डिनेशन ने कहाँ पर नहीं सीखा था? इन्फेंटहुड एंड अर्ली चाइल्डहुड। अब इस स्टेज में क्या होता है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बन जाता है, दूसरा बैलेंसिंग एक्टिविटी। दैट इज वाई जो हमारे 7 से 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं, दे लव टू जस्ट हैव अ बाईसाइकिल राइडिंग विदाउट हैविंग दैट सपोर्ट। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी साइकिल चलाते हैं, बट उनके साइड में क्या है, सपोर्ट दिया रहता है। भाई हमने जो साइकिल देखा उसमें साइड में जो 2 टायर के सपोर्ट होते हैं वो होता है, बट एट दैट स्टेज दे आर नॉट हैविंग अ कंट्रोल, दे आर नॉट नोइंग हाउ टू बैलेंस दैट पर्टिकुलर साइकिल। ठीक है, बट व्हेन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज रीच दैट this stage, 7 to 10 years of age, at that stage that particular child is going to know about that how to balance their body and how to balance that particular object on which they are riding। ठीक है, now next at 8 years child has a good control over fingers and above the converse at an adult level and also start thinking logically। एंड 7th ईयर में या 7 साल के एज में क्या हो रहा था, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो रहा था एंड हाउ टू बैलेंस द थिंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग वो हो रहा था। ठीक है, इसके बाद जब 8 साल का होता है, इन दैट कंडीशन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज हैविंग अ प्रॉपर कंट्रोल ऑन देयर फिंगर्स। समझ में आ गया? एंड आफ्टर दोज थिंग्स दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज गोइंग टू यूज अबाउट हाउ टू यूज द प्लान, हाउ टू मेक प्लान एंड हाउ टू एग्जीक्यूट इन अ लॉजिकल मैनर। ठीक है, नेक्स्ट the urge for competition among children of their own age group starts during this stage। देखिए, कंपटीशन आपका इन्फेंटहुड में नहीं था, अर्ली चाइल्डहुड में नहीं था, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर द लर्निंग स्टेज। ठीक है, कंपटीशन आपका किस स्टेज में चालू होगा, व्हेन वी टॉक अबाउट मिडिल चाइल्डहुड, बिकॉज ये एक ऐसा स्ट्रक्चर और या ऐसा स्टेज है, ठीक है, व्हेन द पर्टिकुलर चाइल्ड इज हैविंग नॉलेज अबाउट दैट हाउ टू कंट्रोल देयर बॉडी, हाउ टू बैलेंस, हाउ टू गो फॉर द लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, आफ्टर हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, how to compete in a particular competition। That's why there are so many children we have seen in our school also, जो 6वीं 7वीं 8वीं के जो बच्चे होते हैं, they have always having a one kind of competitive
एटीट्यूड इन देम, ठीक है। ग्राउंड में जाएंगे, चल रेस लगाते हैं, बिकॉज दे आर नोइंग भाई दे आर द बेस्ट एंड दे आर एबल टू परफॉर्म द बेस्ट रनिंग एक्टिविटी इन विद द कलीग, और वी कैन से उनके जो साथ में जो फ्रेंड है उनके साथ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मिडिल चाइल्डहुड। व्हेन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड इज ओनली related with the age of 11 to 12 years, ठीक है। At this stage or at this age of 11, children are better able to make decisions and being to understand that everyone have different beliefs, ठीक है। यहाँ पे हम जानना शुरू करते हैं कि भाई आपका ब्रेन चलना शुरू करता है, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग वो पर्टिकुलर वे में काम करना शुरू कर देती है। भाई आपसे बोला गया है कि मैं तो अगर एक पहाड़ से कूदा था, जैसे बचपन में हम बोलते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चों को हम कहानियाँ सुनाते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दोज स्टोरीज, मैं बोला कि भाई मैं बिल्डिंग से कूद के मैं सही सलामत सेफ हो गया, बच्चा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज दैट दोज चिल्ड्रन आर नॉट नोइंग अबाउट द लॉजिकल बिहाइंड दोज थिंग्स। भाई ऊपर से कूदोगे तो आपके मसल्स में और बोन्स में ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगी, इसी वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, फ्रैक्चर या मसल्स टूट सकते हैं, ठीक है। बट एट दिस स्टेज, कौन सा 11 से 12 साल तक बच्चों को, इनको पता होता है कि आपकी जो मसल्स है उसकी एबिलिटी क्या है, आपकी खुद की एबिलिटी क्या है, आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। इन शॉर्ट वी आर नॉट एबल टू मैनिपुलेट दिस काइंड ऑफ माइंड, ठीक है, बिकॉज उनकी एक लॉजिकल थिंकिंग चालू हो जाती है, बिकॉज वो सारी की सारी चीजें वो लोग फील करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देयर इज अ रैपिड हाइट गेन इज आल्सो देयर एंड आल्सो फील्स हार्ड टू सिट स्टिल। हमारा पर्टिकुलर हाइट जो होता है ऑलमोस्ट इतने साल तक की एज में ऑलमोस्ट एक एवरेज हाइट हमारी बन जाती है, उसके बाद हमें जो हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ना रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एट 12 years of age puberty begins in females and males also change in the structure of them and their glands work effectively at this age. At when we talk about this age of 12 years of age, ठीक है, just after 12 years of age we are just going or entering into the teen age. teen age क्यों 13? बिकॉज जो 12 साल की जो एज होती है उसमें हमारे जितने भी बॉडी के पर्टिकुलर ग्लैंड्स होते हैं, लाइक एड्रेनलिन ले लीजिए, थायराइड ग्लैंड लीजिए, और सो मेनी ग्लैंड्स आर इन अवर बॉडी विच आर कंट्रोल अवर सो मेनी हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। वही जो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करते हैं और सीक्रेट करते हैं और आगे आपकी बॉडी से वैसा वर्क लेते हैं, ठीक है। इस एज के बाद आपकी बॉडी में प्रॉपर जो ग्लैंड्स का जो फंक्शन होता है वो शुरू हो चुका होता है, इज दैट क्लियर। तो उसको कंट्रोल करना हम सीखते हैं कि भाई पर्टिकुलर ग्लैंड्स क्या होता है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो हाउ टू कंट्रोल अवर एड्रेनलिन लेवल, हाउ टू कंट्रोल अवर सेक्सुअल अर्ज, इसके बारे में हम ज़्यादा जितनी जानकारी लेंगे उसी के बारे में हम फिर उसको ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे। दैट्स व्हाई दैट इज अ वन चैप्टर इन द साइंस, जब व्हेन वी टॉक अबाउट दोज क्लास विच वी टॉक अबाउट 8th और 9th, ठीक है, दिस वन चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एट दिस एज स्टेज और दैट एज, वाला चैप्टर बच्चों को पहले ही बता दिया जाता है दैट then they will know about the what kind of body functions are there, what which kind of glands are responsible behind those things, ठीक है। इसकी जानकारी आपको एक पर्टिकुलर एज में दे दी जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी जो मोटर एबिलिटीज है, जो आपकी मोटर स्किल्स है उसको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाला होगा आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर जो भी आपको जेनेटिक्स मिले हैं, भैया अगर आप अगर नॉर्थ इंडिया में बॉर्न हुए हो, ठीक है, वहाँ का स्ट्रक्चर अलग है, वहाँ के जो पर्सन है वहाँ के लोगों के पर्सन्स का स्ट्रक्चर अलग है, उस स्ट्रक्चर को ध्यान रखते दे आर गुड इन बैलेंसिंग एक्टिविटी, बिकॉज शॉर्ट हाइट रहेगा जितना भी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ग्राउंड के पास रहेगा आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, दैट इज अ फिजिक्स। और जितने आप लंबे होंगे आपका बैलेंस बिगाड़ना बहुत आसान होगा, बिकॉज उसकी वजह से क्या होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से ऊपर होता है, समझ में आ गया। बट दे आर हैविंग अ गॉड गिफ्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग शॉर्ट हाइटेड, so they are able to perform good in those activities which is related to the balance activities, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स सेम जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, भाई अगर हम नॉर्थ साइड में रहते हैं तो वहाँ पे अलग आपका बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा, अगर हम साउथ साइड में तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग रहेगा, इसके साथ हमें मोटर डेवलपमेंट फैक्टर इफेक्ट होता है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सेकंड और थर्ड आपका न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटीज, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी इन दैट कंडीशन आल्सो वी आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर कंट्रोल ऑन आवर मसल्स, बिकॉज हमारी मसल्स को भी पावर मिलती है प्रोटीन से, कैलोरीज से। इफ यू आर नॉट टेकिंग दोज काइंड ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज वी आर नॉट एबल टू यूज दिस इंजन मीन्स मसल ग्रोथ, ठीक है। अगर मसल से काम लेना है तो आपको भी
कैलोरीज और प्रॉपर उसका मेंटेनेंस जरूरी है। न्यूट्रिशन में आ गया, फिजिकल एक्टिविटी होती है बेसिकली। फिजिकल एक्टिविटी में वी आर नॉट परफॉर्मिंग, भाई अगर आपको सीखना है पहाड़ के ऊपर चलना है एंड यू आर जस्ट सिटिंग एट योर सीट एंड अज्यूमिंग दैट आई एम क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन, इन दैट केस यू आर नेवर एबल टू लर्न हाउ टू क्लाइंब माउंटेन। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग जस्ट गो फॉर इट एंड डू इट बाय योर ओन। एक बार आप फेल होंगे, 2 बार आप फेल होंगे, लेकिन थर्ड टाइम यू आर गोइंग टू नो हाउ टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन्स। तो बेसिक रीजन ये है कि जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ही नहीं, आप में पर्टिकुलर मोटर स्किल आएगी ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? भाई आपका मौका ही नहीं मिले। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को कभी घर से बाहर जाने ही नहीं देते। इन दैट कंडीशन क्या होता है, बच्चे के बहुत सी मोटर एबिलिटीज सिकुड़ जाती है। ठीक है, जो वो घर में अंदर परफॉर्म कर रहा है उसी के अंदर ही सिमट के रह जाता है। उसको कभी दौड़ना नहीं आता, उसको सही से चलना नहीं आता, बिकॉज दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज नॉट नोइंग हाउ टू रन। बिकॉज भागने के लिए क्या है, एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जिसमें कॉम्पिटिटिव फीलिंग होगी, उसके बाद वो एक साथ भागे, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं, दूसरों से सीखे कि वो किस तरह से भाग रहा है, हमें कैसे मूवमेंट करने, हमें कैसे सीखना है। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाए, इन दैट कंडीशन ऑल्सो योर मोटर स्किल्स विल डिफर अफेक्टेड। ठीक है, सेंसरी इम्पेयरमेंट एंड पोस्चरल। भैया अगर आपके कोई भी तरह का सेंसर का सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इफ यू हैविंग सम काइंड ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी, इन दैट कंडीशन आल्सो वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म मैनी मोटर स्किल्स। एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है एक्चुअली कि भैया अगर आपको दौड़ना है या चलना है या क्लाइंबिंग करनी है, उतरना है, इन दैट कंडीशन यो जो वेट इज गोइंग टू बी पुटिंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। बिकॉज आपके पैरों में एक्स्ट्रा वेट पड़ने से क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। बिकॉज आपके पैरों को ऑलरेडी जो एनर्जी यूज होनी थी, आप उससे ज़्यादा ओवरबर्डन अपने पैरों में डाल रहे हैं, और उसके साथ अगर आप भागोगे बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्स्ट्रा ओवरवेट ऑन योर बॉडी, आपके जो पैर हैं उसका स्ट्रक्चर भी बिगड़ेगा और दूसरा जो उसकी एफिशिएंसी वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके ये सारे पॉइंट्स इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।